हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट 9 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहा हूं और ये परफेक्शन आईएएस के फुल सिलेबस का पहला टेस्ट है। ये सारे क्वेश्चंस आने वाले बीपीएससी 68th प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में आप सबको सफल बनाने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, Which one of the following statements is not correct about Balban? He eliminated the power of Turkane Chahalgami. ये सही है। He quelled down the revolt of Bengal. ये भी सही है। He propounded the theory of नियाबत ए खुदाई। ये भी सही है। He introduced the इक्तदारी सिस्टम। नहीं, इक्तदारी सिस्टम को इल्तुतमिश ने इंट्रोड्यूस किया था, बलबन ने नहीं। सो ये स्टेटमेंट गलत है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वुमेन्स पार्टिसिपेशन इज कंसिडर टू बी मैक्सिमम? इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। राइट ऑप्शन डी होगा यहाँ पे। गांधी जी चूज वुमेन फॉर ए हाई रोल इन द पिकेटिंग ऑफ लीकर एंड फॉरेन क्लॉथ शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर इनहेरेंट कैपेसिटी फॉर नॉन वायलेंस। सरोजनी नायडू लीड द रेड ऑन धरासना साल्ट वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर वेयर दी कंटेम्प्ररी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फाउंड इज इन। तो वो गुजरात के अरबियन सी के कोस्ट पे, गुजरात स्टेट में अरबियन सी के कोस्ट पे सौराष्ट्र रीजन में ये पाया जाता, सौराष्ट्र रीजन में लोकेटेड है ये रंगपुर। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शंस ऑफ द फॉलोइंग डिनेस्टी लुम्बिनी वाज नोन एज बुधाज बर्थ प्लेस? मौर्यन। राइट ऑप्शन विल बी बी। From the Mauryan dynasty emperor Ashoka's Rumindei pillar inscription, it is known that Lumbini is the birthplace of Gautam Buddha. According to this inscription, King Ashoka came here in the 20th year of his coronation and worshipped the place where Shakyamuni was born. In addition to that, he also exempted Lumbini from tax as it was the birthplace of Gautam Buddha. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर गौतम बुद्धा अटेंड इनलाइटमेंट? गया के निरंजना रिवर के बैंक पे। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेज वाज द अर्लीस्ट जैन लिटरेचर कंपाइल्ड? तो ऑल द इनिशियल रिलीजियस जैन लिटरेचर हैज बीन रिटन इन ए स्पेसिफिक ब्रांच ऑफ प्राकृत लैंग्वेज। इट्स 12 अंगाज आर इन द अर्ध मागधी लैंग्वेज। Right option will be C. Next question, battle that laid the foundation of Muslim domination in India was? Second Battle of Tarain. Second Battle of Tarain. Right option will be B. The Second Battle of Tarain was fought between Muhammad Ghori and Rajput army of Prithviraj Chauhan. The battle took place in 1192 AD near Tarain. In this battle, Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori. After this battle, the Muslim power was strongly rooted in northern India, which may be regarded as a turning point in Indian history. Next question, which of the following rulers increased the land revenue to overcome financial difficulties? Muhammad bin Tughlaq. Right option will be A. In order to overcome the financial difficulties faced by his empire, Muhammad bin Tughlaq increased the land revenue to half the produce on the farmers of the land between the Ganges and Yamuna rivers. Next question, globalization means integration of the economy? No. Integration of various sectors of the economy? No. Integration of domestic economy with the global economy? बिल्कुल राइट ऑप्शन यही होगा C. Next question, the Upanishads were translated by Dara Shikoh in Persian under the title of Sir-e-Akbar. Right option B होगा Sir-e-Akbar. Next question, which among the following sultans of Delhi abolished the zakat tax on grains? Sikandar Lodi. Right option A होगा सिकंदर लोदी. Owing to a transient shortage of maize, Sikandar Lodi abolished the zakat on grain and it was not renewed by any subsequent sultan. The prices of all necessary articles remained low during his period. Several grain levies were abolished by him. Next question, consider the following pairs: year of Congress, session president.
1887 का कांग्रेस सेशन के प्रेसिडेंट जॉर्ज यूले नहीं थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये थर्ड सेशन का था कांग्रेस का, और इसके प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी थे, जॉर्ज यूले नहीं थे, ये गलत है। 1924 के बेलगाम जो सेशन था कांग्रेस का, उसके प्रेसिडेंट महात्मा गांधी थे, ये सही है। और ये 39th सेशन था कांग्रेस का, 39th सेशन। तो महात्मा गांधी जो है 39th सेशन ऑफ कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे। और 1938 का जो कांग्रेस सेशन था उसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे, बिल्कुल ये सही बात है। ये था 51st सेशन था कांग्रेस का, हरिपुरा में हुआ था ये 1938 में। इसके प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस बने थे। तो 2 और 3 सही है, 1 गलत है। 2 and 3 ओनली, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वेर द लास्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग? फ्रेंच, राइट ऑप्शन बी होगा, फ्रेंच। द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड इन 1664 ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग लुइस 14th टू ट्रेड विथ इंडिया। In 1668, the French established their first factory at Surat, and in 1669, established another French factory at Masulipatam. Next question, who among the following leaders did not believe in the drain theory of दादा भाई नौरोजी? तो वो हैं सर सैयद अहमद खां। इनका मानना था कि मुस्लिमों का डेवलपमेंट ब्रिटिश रूल में ही संभव है, कॉलोनियल रूल में ही संभव है। ये लॉयल बन करके रहना चाहते थे। सो इसमें से राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट इवेंट रिलेटिंग टू द वार ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 वाज? बेगम हजरत महल्स लीडरशिप ऑफ औध, नहीं ये गलत है। रिवोल्ट बाय रानी ऑफ झांसी, नहीं ये भी गलत है। मार्चिंग ऑफ सिपोइज टू दिल्ली रेड फोर्ट, यही फर्स्ट इवेंट था, राइट ऑप्शन विल बी सी। नाना साहब रिवोल्टेड ऑन 5th June 1857 in Kanpur. Begum Hazrat Mahal had led rebellions in Audh on 30th May 1857. Revolt of Rani of Jhansi Lakshmi Bai started in June 1857 and ended after her martyrdom on 17 June 1858. Next question, the Bengali newspaper was started by which among the following activists in 1879? Surendranath Banerjee, right option D होगा। Surendranath Banerjee was one of the earliest political leaders during the British rule. He founded the newspaper The Bengali in 1879 and founded the Indian National Association with Anand Mohan Bose, the first Indian political organization of its kind, on July 26, 1876. Next question, the Pagalpanthi rebellion was indeed a rebellion of Garo's tribe, right option C होगा। Pagalpanth, which was a quasi-religious community sect which was introduced by Karam Shah of North Bengal. Son of Karam Shah and successor, Tipu was inspired with religious and political purposes. Tipu and Shah led these people to uphold the religion and rights of the peasants in Bengal. He captured Sherpur in 1825 and became king. He appointed a judge, a magistrate and a collector to control administration. Next question, which among the following books were translated into English by Sir Charles Wilkins? तो सर चार्ल्स विल्किंस ने 1785 में गीता को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, गीता को कब? 1785 में। एंड हितोपदेश को उन्होंने ट्रांसलेट किया 1787 में, 1787 में। तो 2 का हितोपदेश एंड गीता का, सो राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 and 3 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वायसराय ऑफ इंडिया मेड द दीपावली डिक्लेरेशन? तो दीपावली डिक्लेरेशन जिसको लॉर्ड इरविन डिक्लेरेशन यानी इरविन डिक्लेरेशन भी कहा जाता है, इन्होंने डिक्लेयर किया था। ये डिक्लेरेशन अपना दिया था 31 अक्टूबर 1929 को, 31 अक्टूबर 1929 को। इस डिक्लेरेशन में डोमिनियन स्टेटस देने की बात कही गई थी, क्योंकि उस समय इंडियंस के द्वारा डिमांड किया जा रहा था डोमिनियन स्टेटस का। सो राइट ऑप्शन डी होगा, लॉर्ड इरविन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच उर्दू न्यूज़पेपर वाज स्टार्टेड बाय लाजपत राय फ्रॉम लाहौर इन 1920? वंदे मातरम, वंदे मातरम को शुरुआत किया था उन्होंने, राइट ऑप्शन बी होगा। लाला लाजपत राय लॉन्च्ड एन उर्दू डेली, वंदे मातरम एंड एन इंग्लिश वीकली। द पीपल फ्रॉम लाहौर
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग सेड गुड गवर्नमेंट इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर सेल्फ गवर्नमेंट? स्वामी दयानंद सरस्वती, राइट ऑप्शन सी होगा। स्वामी दयानंद सरस्वती was clearly of the view that good government is no substitute for self-government. Though Arya Samaj was never a political body, it worked for spreading the sentiment of nationalism in the country. Next question, which of the following revolutionary was not hanged for Lahore conspiracy? बटुकेश्वर दत्त, राइट ऑप्शन बी होगा। बटुकेश्वर दत्त को हैंग नहीं किया गया था। इन द केस ऑफ लाहौर कंस्पिरेसी ए स्पेशल ट्रिब्यूनल वाज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नर जनरल। इन अक्टूबर 1930 कैपिटल पनिशमेंट वाज इम्पोज्ड टू द थ्री रिवोल्यूशनरीज भगत सिंह, राजगुरु एंड सुखदेव। ऑन मार्च 23, 1931 these three brave sons of Mother India were hanged, while Batukeshwar Dutt was sent to cellular jail of Andaman for Kala Pani punishment. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट लीडर टू ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया? तो वो थे एन.एम. लोखंडे। एन.एम. लोखंडे, इनके नाम पर 2005 में गवर्नमेंट ने एक डाक टिकट जारी किया था। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर डिड सुल्तान मोहम्मद तुगलक ट्रांसफर हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली? दौलताबाद, राइट ऑप्शन बी होगा। सुल्तान मोहम्मद तुगलक शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम दिल्ली इन 1327 एंड इस्टेब्लिश्ड इट इन दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैड नॉट एडवोकेटेड इन INA रेड फोर्ट ट्रायल इन 1945? तब भूला भाई देसाई एसोसिएटेड रहे उससे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं। ये राइट ऑप्शन बी होगा। डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भी, सरदार पटेल उसमें शामिल नहीं रहे। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टील कंपनी हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील ब्रांड? कल्याणी ग्रुप, राइट ऑप्शन सी होगा। कल्याणी ग्रुप। कल्याणी ग्रुप in New Delhi has launched the nation's first green steel brand, Kalyani Ferresta, produced using renewable energy resources, leaving zero carbon footprint in the environment. नेक्स्ट क्वेश्चन, द थर्मोमीटर विच यूज टू मेजर 2000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज? तो पायरोमीटर का यूज किया जाता है हाई टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। और ये जो टोटल रेडिएशन पायरोमीटर जो थर्मोमीटर है, इसको कंटेक्ट में लाने की ज़रूरत ही नहीं है, दूर से रेडिएशन के थ्रू ये टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ इनेक्टेड रेस्पेक्ट फॉर मैरिज एक्ट लीगलाइजिंग सेम सेक्स मैरिज? USA ने भी किया है और फ्रांस, दोनों ने। राइट ऑप्शन यहाँ पे ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए लिक्विड रिमेन्स हॉट और कोल्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम इन थर्मस फ्लास्क बिकॉज देयर इज नो लॉस और गेन ऑफ हीट बाई? तो देखिए, थर्मस फ्लास्क के इनर एंड आउटर वाल के बीच में वैक्यूम रहता है, और वैक्यूम जो है, वैक्यूम से हो करके हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाता है, जिस कारण से उसमें लंबे समय तक, यदि ठंडी चीज़ रखी गई है तो लंबे समय तक ठंडी बनी रहती है, और गर्म चीज़ रखी गई है तो लंबे समय तक गर्म बनी रहती है। अब क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये कौन कौन से फिनोमिनन है, किसके थ्रू हीट का लॉस नहीं हो पाता है? तो यदि हम कंडक्शन की बात करें, मान लीजिए ये रड है, यहाँ पे हम गर्म करना शुरू कर दें, एक इंड पे हम गर्म करना शुरू कर दें, मतलब यहाँ हीट सप्लाई शुरू कर दें, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, यहाँ का जो एटम है, पहले हीट गेन करेगा। हीट गेन करेगा तो ये लार्ज एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करना शुरू कर देगा, मतलब इसका वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगा। ये अपने नेबरिंग पड़ोसी मॉलिक्यूल जो है उसको ट्रांसफ़र कर देगा हीट, ये अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करेगा, नेबरिंग एटम को ट्रांसफ़र करेगा। इस तरीक़ा से ये बिना अपनी जगह को छोड़े एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र कर देता है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, कन्वेक्शन में क्या होता है? कन्वेक्शन में जो है, तो यहाँ पे मीडियम की ज़रूरत है। कंडक्शन के थ्रू हीट को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत है। ये पार्टिकल ही तो एक हीट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, अपने आगे वाले मॉलिक्यूल को, अपने आगे वाले एटम को, तो इसमें मीडियम की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में मान लीजिए कि ये कंटेनर है, इसमें वाटर रखा गया है, इसको हमें गर्म करना है। तो जब हम हीट सप्लाई करते हैं, इसको गर्म करते हैं, तो यहाँ का जो मॉलिक्यूल है, जो बॉटम में जो मॉलिक्यूल है, हीट को गेन कर लेता है, हीट को गेन कर लेता है, हीट गेन करके ये ऊपर चला जाता है। तो ये वैकेंसी जो क्रिएट किया, ऊपर से जो वाटर मॉलिक्यूल है आकर के इस वैकेंसी को फिल करता है, और फिर वो हीट गेन करके एक ऊपर चला जाता है। इस तरीक़ा से हीट का ट्रांसफ़र जो हो रहा है, मॉलिक्यूल अपनी जगह को छोड़ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। तो मॉलिक्यूल तो है ना, मॉलिक्यूल मतलब मीडियम का पार्ट
पार्टिकल है जो एक जगह से दूसरी जगह हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो इसमें भी मीडियम की ज़रूरत है। लेकिन रेडिएशन में मीडियम की ज़रूरत नहीं है। जैसे सन है, सन से रेडिएशन अर्थ सरफेस पे आ रहा है, बीच में क्या है, वैक्यूम है, ये पता नहीं है, तो मतलब रेडिएशन के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। तो वैक्यूम से रेडिएशन के थ्रू हीट का लॉस तो हो सकता है, लेकिन कन्वेक्शन के थ्रू एंड कंडक्शन के थ्रू हीट का लॉस नहीं हो सकता है यदि फ्लास्क के, थर्मस फ्लास्क के इनर एंड आउटर वॉल के बीच में यहाँ पे वैक्यूम हो तो 1 और 2 सही है। राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिलीज सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स। तो रिलीज किया है प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने, EAC, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। राइट ऑप्शन बी होगा। द इंडेक्स assesses states and districts across 3 critical dimensions of social progress: basic human needs, foundations of well-being, and opportunity. Next question, which one of the following types of waves are used in night vision apparatus? इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ पे मान लीजिए विजिबल आ रहा है, ये वायलेट है और ये रेड है, 7 विजिबल कलर्स होते हैं और इनका वेवलेंथ कहाँ से कह सकते हैं लगभग 400 नैनोमीटर से लेकर के 700 कहिए या 750 नैनोमीटर के बीच में रहता है। कभी कभी 350 भी दे दिया जाता है, तो लगभग ये मैं कह रहा हूँ 400 नैनोमीटर से लेकर के 750 नैनोमीटर के बीच में होता है इसका वेवलेंथ। तो वायलेट कलर के वेवलेंथ से कम वेवलेंथ के जो रेडिएशन होते हैं उसको अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहा जाता है, और रेड कलर से ज़्यादा वेवलेंथ वाले जो रेडिएशन होते हैं उनको इंफ्रारेड रेडिएशन कहा जाता है। तो नाइट विजन अपरेटस, नाइट विजन डिवाइसेस जो भी हैं उनमें इंफ्रारेड वेव का यूज किया जाता है, क्योंकि इनका वेवलेंथ ज़्यादा होता है, देखने में आसानी होती है। जब लाइट अवेलेबल नहीं हो तो उस केस में भी इनसे देखा जा सकता है। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन वेसल इज पार्टिसिपेटिंग इन 50th केप टाउन टू रियो रेस 2023। तो वो है INSV तारिणी, INSV तारिणी। राइट ऑप्शन ए होगा। इंडियन नेवी की सेल बोट INS तारिणी ने केप टू रियो रेस 2023 के 50th एडिशन 50वें एडिशन में भाग लेने के लिए केप टाउन, दक्षिण अफ्रीका के यानी साउथ अफ्रीका के एक अभियान के लिए उसको भेजा गया है, रवाना किया गया है। ये जो महासागर नौकायन दौड़ है यानी ट्रांस अटलांटिक ओशियन रेस, इसमें 2 जनवरी 2023 को केप टाउन से इसकी शुरुआत की गई थी और ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में समाप्त हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन साइट हैज और हैव बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को टेंटेटिव लिस्ट। तो गुजरात के 2 साइट्स को मोढेरा सन टेम्पल एंड बेदनगर टाउन। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कोलाइडल सिस्टम इज एक्सप्रेस्ड इन फॉग। तो फॉग में क्या होता है, फॉग में जो वाटर वेपर है वो ड्यू पॉइंट से कम टेम्परेचर पे डस्ट पार्टिकल के अराउंड कंडेंस्ड होकर के उनका कंडेंसेशन होने के बाद में वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, और वाटर ड्रॉपलेट्स जो है उनका वेट कम होने की वजह से वो एयर में ही सस्पेंडेड रहते हैं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, लिक्विड इन गैस, वाटर ड्रॉपलेट जो है गैस में सस्पेंडेड है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज कॉमन सॉल्ट इन डिटर्जेंट्स। तो डिटर्जेंट में जो कॉमन सॉल्ट होता है सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर नॉट द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, बाकी ये तीनों होते हैं। तो राइट ऑप्शन ये होगा। इसको सिल्वर क्यों कहा जाता है जर्मन सिल्वर, क्योंकि सिल्वर के जैसा लस्टर इसमें रहता है, सिल्वर के जैसा चमक होता है। इसमें कॉपर जो होता है 60% कॉपर एंड 20% निकेल एंड जिंक भी 20% ही होता है, सिल्वर नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलिमेंट बिहेव्स केमिकली बोथ एज मेटल एंड नॉन मेटल। तो दोनों के जैसा बिहेव करने वालों को मेटलॉइड्स कहा जाता है। आर्गन तो मेटलॉइड है नहीं, कार्बन मेटलॉइड नहीं है, नॉन मेटल है, जेनॉन भी मेटलॉइड नहीं है। आर्गन एंड जेनॉन ये इनर्ट गैसेस हैं, कार्बन जो है नॉन मेटल है, बोरॉन जो है मेटलॉइड है। देखिए पीरियोडिक टेबल यदि ध्यान से देखें तो सबसे लेफ्ट में अल्कली मेटल है, उसके बाद में अल्कलाइन अर्थ मेटल है, उसके बाद में ट्रांजिशन मेटल्स हैं, और राइट साइड में हम जाएं
सबसे राइट में, तो इधर नॉन मेटल्स हो गए, नॉन मेटल्स। और बीच में जो एक डायगोनली स्ट्रिप पाया जाता है जिसमें ये 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स, वो मेटलॉइड्स हैं, उनमें दोनों ही की प्रॉपर्टी पाई जाती है मेटल एंड नॉन मेटल्स की। जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, एंटीमनी हो गया, बोरॉन हो गया, ये सारी चीज़ें। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमोंग द फॉलोइंग डिजीजेज इज ऑल्सो नोन एज पिंक आई। तो जो हमारे आँखों का जो वो वाइट वाला जो पोर्शन होता है बीच में, वाइट वाला पोर्शन, वो यदि पिंक कलर का हो जाता है तो उसी को कहा जाता है कंजंक्टिविटिस, कंजंक्टिविटिस या कंजंक्टिवाइटिस, कंजंक्टिवाइटिस। राइट ऑप्शन ए होगा यहाँ पे। ये एलर्जी की वजह से भी हो सकता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एशियन कंट्री हैज अनाउंस्ड $320 बिलियन प्लान फॉर मिलिट्री बिल्डअप फॉर नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो जापान ने चीन पर हमला करने में सक्षम मिसाइलों को खरीदने और किसी भी संघर्ष के लिए देश को तैयार करने के लिए 320 बिलियन के सैन्य खर्च की योजना की घोषणा की है। जापान। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू डाइजेस्ट प्रोटीन विच ऑफ द एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पैनक्रियाटिक जूस। तो वो है ट्रिप्सिन। देखिए 3 तरह के एंजाइम, ताल, TAL, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, और एमाइलेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज एंड लाइपेज। एमाइलेज किसका डाइजेशन करता है? कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट का। और लाइपेज किसका करता है? फैट का। ट्रिप्सिन प्रोटीन का, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का एंड लाइपेज फैट का डाइजेशन करता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ पैडी। राइट ऑप्शन ए होगा। ये नाइट्रोफिक्सेशन साइनोबैक्टीरिया होता है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो इनमें से फ्लोरीन है, फास्फोरस भी है, कैल्शियम भी है, लेकिन आयोडीन जो है थायराइड ग्लैंड से स्रावित होने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन को ये कंट्रोल करता है, तो ये नहीं होगा यहाँ से। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल एलिमेंट इज नॉट इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ बोन्स एंड टीथ, वो है आयोडीन। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फंक्शन ऑफ द लीवर। तो लीवर जो है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है और ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन भी होता है। ये फैट को स्टोर करता है और जो हार्मफुल अमोनिया होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करता है। साथ ही और ये यूरिया क्या है? यूरिया इज वन ऑफ द एंड प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म दैट इज एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। सो राइट ऑप्शन होगा यूरिया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एप्पल हैव ए स्पेशल वैल्यू फॉर हार्ट पेशेंट बिकॉज दे आर रिच सोर्स ऑफ। देखिए एप्पल जो है अदर एलिमेंट्स के अपेक्षा पोटेशियम को ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, तो इसमें पोटेशियम ज़्यादा अच्छे से पाया जाता है। और पोटेशियम करता क्या है? पोटेशियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी मेंटेनिंग ए हेल्दी हार्ट रिदम थ्रू मसल एक्शन। सो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें ओनली पोटेशियम होगा, ई, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइबोफ्लाविन डिफिशियंसी कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। तो स्किन डिसऑर्डर होता है उसे। राइट ऑप्शन सी होगा यहाँ पे। राइबोफ्लाविन क्या है? ये राइबोफ्लाविन विटामिन B2 का नाम है, विटामिन B2 का। बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की वजह से होता है, थाइमिन उसका नाम है। एस्कॉर्बिक किसकी डिफिशियंसी से होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका नाम है? विटामिन C का नाम है, तो विटामिन C की डिफिशियंसी से एस्कॉर्बी होता है। प्लेग्रा किसकी डिफिशियंसी से होता है? प्लेग्रा जो है विटामिन B3 की डिफिशियंसी से होता है, B3, और B3 का केमिकल नाम क्या है? नियासिन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 30/30 टारगेट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन और बॉडी। CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। राइट ऑप्शन डी होगा। एज पर द कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क इन मॉन्ट्रियल, क्यूबेक, कनाडा, delegates committed to protecting 30% of land and 30% of coastal and marine areas by 2030.
fulfilling the deal's highest profile goal known as 30/30. Next question, India's longest escape tunnel has been completed in which state or union territory? तो ये जम्मू कश्मीर के बनिहाल कटरा सेक्शन ऑफ द उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक में ये इंडियन रेलवे के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया है। इसका लेंथ 12.89 किलोमीटर है इस टनल का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट्स ग्रोइंग ऑन द रॉक्स आर कॉल्ड। तो रॉक्स में या रॉक्स पे जो प्लांट ग्रो करते हैं उनको लिथोफाइट कहा जाता है। लिथोफाइट राइट ऑप्शन बी होगा। ये मेजोफाइट का क्या होते हैं? मेजोफाइट ऐसे जगहों पे ग्रो करते हैं जहाँ ना तो ज़्यादा मॉइस्चर हो और ना ही ज़्यादा ड्राइनेस हो, ना तो ड्राई और ना तो बीच की जगहों हो, कम ड्राई हो कम मॉइस्चर हो, वहाँ पे ये उगते हैं मेजोफाइट्स। और ये हेलोफाइट्स क्या कहलाते हैं? सॉल्टी वाटर में जो उगते हैं जो प्लांट्स उसको कहा जाता है हेलोफाइट्स। और एपीफाइट्स क्या होते हैं? एपीफाइट्स जो है किसी दूसरे पौधे या किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे जो उगते हैं उसको कहा जाता है एपीफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स इज अल्वियोली। राइट ऑप्शन ए होगा अल्वियोली। द फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज The function of the respiratory system is to move two gases, oxygen and carbon dioxide. Gas exchange take place in the millions of alveoli in the lungs and the capillaries that envelop them. In this process, inhaled oxygen moves from the alveoli to the blood in the capillaries, and carbon dioxide moves from the blood in the capillaries to the air in the alveoli. So right option A होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट मैच। हार्वी बोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं? नहीं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। सेप्रोफाइट डिकम्पोजर्स होते हैं। ये सेप्रोफाइट क्या है? सेप्रोफाइट ए प्लांट, फंगस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स ऑन डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इन एन इकोसिस्टम सेप्रोफाइट्स एक्ट एज डिकम्पोजर्स। तो ये सही है। पैरासाइट क्या होते हैं? कंज्यूमर्स होते हैं। जो दूसरे पे डिपेंडेंट करते हैं वो पैरासाइट होते हैं। पैरासाइट क्या है? कंज्यूमर्स हैं, प्रोड्यूसर तो है नहीं। ये सही है। ऑटोट्रॉफ, ऑटोट्रॉफ क्या है? प्रोड्यूसर। जैसे प्लांट ऑटोट्रॉफ है और वो प्रोड्यूसर्स हैं, प्रोड्यूस करते हैं, वो दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, प्रोड्यूसर हैं। तो ये भी सही है। गलत कौन सा है? ए है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इसमें से एड्स भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ट्राइकोमोनास भी, गोनोरिया भी एंड सिफिलिस, ये चारों जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं। जिसमें से एड्स जो है वायरल डिजीज है, ट्राइकोमोनास जो है वो पैरासिटिक डिजीज है, और गोनोरिया एंड सिफिलिस ये दोनों बैक्टीरियल डिजीजेज हैं। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हार्मोन सिक्रेटेड बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मिल्क प्रोड्यूसर हार्मोन। तो वो है LTH हार्मोन। LTH का मतलब होता है कि लैक्टोजेनिक हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन। और ये STH क्या है? TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इसका नाम है। और ACTH क्या है? ACTH का मतलब होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा LTH यानी लैक्टोजेनिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ क्लोव ऑयल। तो क्लोव ऑयल में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको यूजेनॉल कहा जाता है। इसका फार्मूला है C10H12O2, C10H12O2 यूजेनॉल का। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बैक्टीरिया डज नॉट लिव इन फ्रीली इन द सॉइल। तो क्लोस्ट्रीडियम, एजोस्पाइरिलियम एंड एजेटोबैक्टर ये तीनों जो है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन, ऐसे तो चारों नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया है, लेकिन ये तीनों जो है इंडिपेंडेंटली सॉइल में रहते हैं, रह सकते हैं। लेकिन राइजोबियम जो है इंडिपेंडेंटली सॉइल में नहीं रहता है, ये दलहनी पौधों के जड़ों में रहता है। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ RBC। RBC के फॉर्मेशन में फॉलिक एसिड की ज़रूरत है, आयरन की भी ज़रूरत है, प्रोटीन की भी ज़रूरत है, लेकिन सॉल्ट की कोई ज़रूरत नहीं। ये कोई भी रोल प्ले नहीं करता है RBC के निर्माण में, RBC बनने में, फॉर्मेशन में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट वन इन द कंट्री टू प्रोवाइड 1% रिजर्वेशन फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन ऑल द गवर्नमेंट सर्विसेज? वो है स्टेट कर्नाटका। राइट ऑप्शन विल बी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा मिर्चा पॉपुलरली नोन एज किंग चिली वाज फर्स्ट एक्सपोर्टेड टू लंदन फ्रॉम विच स्टेट? तो नागालैंड से एक्सपोर्ट हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग हैज बिकम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर? तो वो है वी प्रणव। राइट ऑप्शन सी होगा। इन्होंने रोमानिया में एक टूर्नामेंट को जीत करके 75वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये रोमानिया में एक टूर्नामेंट आयोजित हुआ था। द चेन्नई बेस्ड चेस प्रोडिगी वी प्रणव बिकेम इंडिया 75th ग्रैंड मास्टर बाई विनिंग ए टूर्नामेंट इन रोमानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वज्र प्रहार 2022 इज ए डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? तो वो इंडिया एंड यूएसए के बीच में हुआ था। द 13th एडिशन ऑफ द इंडिया यूएस ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेस एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2022 वाज कैरिड आउट एट बाकलोह इन हिमाचल प्रदेश। सो राइट ऑप्शन विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फ्रूट कीवी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। राइट ऑप्शन सी होगा। अरुणाचल प्रदेश इज द फर्स्ट इंडियन स्टेट दैट ऑब्टेन्ड ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑफ कीवी फ्रूट अंडर द मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेरिलीन इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ टेट्राफ्थैलिक एसिड एंड विच ऑफ द फॉलोइंग? तो टेट्राफ्थैलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल के कंडेंसेशन के बाद में टेरिलीन बनता है। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या है? जैसे कार्बन, यहाँ पे एक कार्बन ले लीजिए HH, यहाँ H, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ OH जोड़ दीजिए, ये इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। इधर OH जोड़ दीजिए, इथिलीन ग्लाइकॉल हो गया। अब इस पे हम क्या करते हैं, ट्रेप्थाइलिक एसिड क्या होता है? एक बेंजीन रिंग ले लीजिए, बेंजीन रिंग, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे COOH जोड़ दीजिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी COOH जोड़ दीजिए, COOH। तो ये है ट्रेप्थाइलिक एसिड। तो ट्रेप्थाइलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकॉल को जब हम गर्म करते हैं 420 टू 460 केल्विन टेम्परेचर तक जब गर्म करते हैं इसको, तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, एलिमिनेट हो जाता है, और इसी को कंडेंसेशन कहा जाता है। तो इन दोनों के इथिलीन ग्लाइकॉल एंड ट्रेप्थाइलिक एसिड के कंडेंसेशन के बाद में बनता है टेरिलीन। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाउडी नाइट्स आर जनरली वार्म बिकॉज? देखिए, ये मान लीजिए कि अर्थ सरफेस है और यहाँ पे क्लाउड बने हुए हैं, ये सब क्लाउड्स हैं। तो यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होकर के रेडिएशन जाएगा ऊपर की ओर, तो ये ट्रैप कर लेते हैं ऊपर, ये बाहर नहीं जाने देते हैं। अर्थ के एटमॉस्फेयर से ये बाहर नहीं जाने देते हैं, तो यहीं ट्रैप होकर के रह जाते हैं और इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो क्लाउड ब्लॉक द रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड लोअर एटमॉस्फेयर। राइट ऑप्शन यहीं होगा ए, क्योंकि क्लाउड जो होते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेडन एडिशन ऑफ द इंडियन ओशियन नवल सिंपोजियम मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 यानी IMX 2022 वाज कंडक्टेड एट? तो ये अरबियन सी एंड गोवा में ये ऑर्गेनाइज हुआ था। राइट ऑप्शन ए होगा। इसका पर्पस क्या था? द एम ऑफ द एक्सरसाइज वाज टू इन्हेंस इंटर ऑपरेबिलिटी इन द ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ operations among the member navies. Next question, which of the following has launched India's first credit card made from recycled PVC plastic? तो वो है HSBC बैंक। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट विच प्लेस द मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अप्रूव्ड टू सेट अप इंडियाज बिगेस्ट वर्ल्ड क्लास रेसलिंग एकेडमी? तो वो दिल्ली के किशनगंज। राइट ऑप्शन डी होगा। किशनगंज बिहार नहीं, किशनगंज दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑल इंडिया कैंपेन हैज बीन लॉन्च्ड बाय द रेलवेज प्रोटेक्शन फोर्स रिसेंटली अगेंस्ट द ब्लैक मार्केटर्स? तो ब्लैक मार्केटर्स के अगेंस्ट RPF ने ऑपरेशन उपलब्ध शुरू किया था।
लॉन्च किया था, राइट ऑप्शन डी होगा। इसमें क्या किया गया कि ये ऑपरेशन में जो ब्लैक मार्केटिंग करने वाले, जो मतलब टिकट को ब्लैक में बेचने वाले लोग थे, उनको धरा पकड़ा गया, उनके गतिविधियों पर अंकुश लगाया गया और आम लोग जो जिनको टिकट की जरूरत थी उनको टिकट उपलब्ध कराने में काफ़ी मदद मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली लॉन्च द जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग? तो वो है नाबार्ड, राइट ऑप्शन सी होगा। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दैट मीन्स नाबार्ड, लॉन्च द जीवा प्रोग्राम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग अंडर इट्स एक्जिस्टिंग वाटरशेड एंड बॉडी प्रोग्राम इन 11 states. Next question, which movie won the Best Picture award at the 94th Academy Award, also known as the Oscars? Coda, right option D होगा। Next question, who has won the Swiss Open 2022 Women's Single title in Badminton? तो वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने इनको हराया। इनका नाम थोड़ा सा कठिन है, क्या नाम है? बुसानन ओंगबामरुंगफान, बुसानन ओंगबामरुंगफान, इनको हरा करके टाइटल जीता है, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज द होस्ट ऑफ नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सोशल इंटरप्राइजेज फॉर गार्बेज फ्री सिटीज? तो वो है छत्तीसगढ़, राइट ऑप्शन बी होगा। स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत, ये ऑर्गेनाइज किया था क्या ऑर्गेनाइज किया था? नेशनल कॉन्क्लेव ऑन सोशल इंटरप्राइजेज फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। कहाँ पे? रायपुर में, छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट के सहयोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्लोबल एसोसिएशन प्रपोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैरिफ? तो वो है यूरोपियन यूनियन, राइट ऑप्शन डी होगा। द यूरोपियन यूनियन प्रपोज द वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन टैरिफ ऑन इंपोर्ट्स ऑफ स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स, एल्यूमिनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोटेक्ट यूरोपियन इंडस्ट्री. European Union countries have recently backed the association plan to impose a world first carbon dioxide emission tariff on imports of polluting goods. Next question, who is the first Indian to win an Indian Open men's singles title on debut? तो वो है लक्ष्य सेन, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री इज द फर्स्ट टू सक्सेसफुली कंडक्ट ए ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट फ्रॉम ए जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग? तो यूएसए में हुआ था ये। यूएसए के डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट किया था, लेकिन ये लंबे समय तक जीवित नहीं रहे, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट अनाउंस्ड ए कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी? राजस्थान ने घोषित किया है, राइट ऑप्शन ए होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहा पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट 9 के इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन के डिस्कशन का पार्ट 1। आप बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं इसके पार्ट 2 वाले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।